Friends, today we are going to start with a new thing, that is Introduction to Accounting Part 4, containing the concept of accounting. First, let me tell you what is exactly concept. Concept is the basic idea on which the pyramid of accounting stands. मान लीजिए कि अकाउंटिंग एक बिल्डिंग है जो कि मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, और ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग को मजबूत बनाने के लिए जो पिलर चाहिए वो भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पिलर वीक हो जाएगा तो टोटल बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए जो इंजीनियर प्लानिंग देते हैं वो पहले सोचते हैं जो हाउ द बिल्डिंग विल बी स्ट्रांग एंड फॉर दिस द पिलर मस्ट बी स्ट्रांग। अकाउंटिंग जो बिल्डिंग है वो कुछ पिलर का ऊपर खड़ा होता है, एंड दैट पिलर्स आर कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। दिस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट विथ आइडिया, एंड दैट आइडिया लीड्स टू accounting record. Then starts the accounting finalization, all other things, financial statements. So first a idea, first how to solve a particular real problem, and after concept it comes the accounting definition. Then comes the transaction. ट्रांजेक्शन का बाद आपका लेजर, देन लेजर गिव राइज टू ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से हम लोग का जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट एटसेट्रा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको जरूरी है वो बन सकता है। So let us start with the concept of accounting, which is very interesting. So suppose somebody, a person, and that person has got certain money, and that person has got certain money, कितना ना 1 lakh. That person has got rupees 1 lakh amount. He has got two options. One, he can keep the money with himself. He does not believe in a banking system. He does not believe in investment. He does not believe in post office deposit etc. जितना भी आपका डिपॉजिट, उसका ऊपर भरोसा नहीं है। Very old man, and he wants to keep the money himself. Friends, इससे क्या आपका कोई इंटरेस्ट मिलेगा? पैसा कोई इंक्रीज होगा? आपका 1 लाख 5 साल का बाद 1 लाख ही रहेगा। हो सकता है कि अगर मोनेटाइजेशन हो जाएगा, ये पुराना रुपया बिकम इनवैलिड एंड अगेन दैट्स ए टोटल लॉस हो जाएगा। उसका बात में नहीं बोलते हैं। सोच लीजिए कि ही वांट्स टू कीप द मनी विथ हिमसेल्फ, दैट मनी विल नेवर ग्रो। अनदर ऑप्शन, he can keep in other way, that we shall come later. Suppose he has only one option here, that is he want to keep himself. If he transfer this money to this hand,
This is a left hand. He keep this money in a right hand. Again he keep this money in left hand. So just changing the hand. The money is here and it will be put here. Again I will put here. Again I will put here. Do you think there will money can generate income? No, because there is no exchange of hands. Only the same person is changing the hands. There must be two persons so that the income will generate. If a same person will do transaction by himself, income cannot be generated. Hence, the concept of transaction come. So the transaction must be with the different person, not with himself. Then the different person. And if the transaction is with the different person, it will bring certain return to your money. It may be loss, but general objective is the profit. Right? Therefore, for a business, two persons at least are necessary to complete a transaction. Now, who are these two persons? Suppose this person is the owner of the business, right? And he is the owner of the business. And this owner of the business has got, he is the owner, he has got rupees 1 lakh. And he understands that if the money will be kept with himself, no return will come. He has to do certain thing to bring some income. So he started a grocery shop. A grocery shop. And the ग्रोसरी शॉप का ओनर कौन है ना, खुद मिस्टर एक्स इज द ओनर. वो ग्रोसरी शॉप का वही ओनर है. राइट नाउ ही इज द रियल मैन. दिस इज ए वर्चुअल मैन. And this real man wants to earn income, and he created a virtual man. If you see the mirror, if you stand in front of the mirror, you will see that another person is there and you are the real. That person is a virtual but same. So that virtual man का संग उसका बिजनेस चलेगा. Right? Because he cannot do business with himself. So in a business, the first thing is a person cannot do business with himself. He has to depend on with certain other person. And that other person is a virtual figure. And he created certain wall between these, because this is the mirror here.
This is the mirror. And this person is called real, and this is your virtual man. This concept, it differentiates the business from the owner. A business and the owner are separate. In order to start a business, in order to generate an income, therefore, here comes the entity concept, the separation of business from the owner. So, it is needed that a business is separated from the owner. So, comes the entity concept of accounting. इसको बोलते हैं separate entity. Entity concept of accounting. And how the entity concept work? Suppose the owner is giving rupees 1 lakh. The owner is giving rupees 1 lakh. He is investing rupees 1 lakh with the business. The business is a separate entity, a separate virtual person. And the business is thinking, I have taken money from Mr. X. I have taken money from Mr. X. So this money is a liability for the business, जिसको हम लोग बोलते हैं उधार. So business has borrowed money from X, right? But X is the owner. Suppose somebody has people are studying in a staying in a hostel, they are taking money from their father. When they are taking money from the father, they are writing a letter, पिताजी हमको पैसा चाहिए. But when they are borrowing from friend, उधर नाम लिखते हैं. मान लीजिए कि फ्रेंड का नाम मिस्टर जेड. मिस्टर जेड, कैन यू हेल्प मी विथ ₹100? बट जब पैसा फादर से लेते हैं, फादर का नाम नहीं लेते हैं. लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं. लिखते हैं कि पापा हमको पैसा चाहिए. सिमिलरली, Mr. X is the owner. He is like the father of the business. Right? Therefore, when the business is taking money, that grocery shop is taking money, that business is thinking that I have borrowed from my father. इसलिए फादर का नाम नहीं लिखते हैं कि क्या मिस्टर एक्स, उनका प्लेस में उसका नाम होता है कैपिटल. सो व्हेन ए ओनर ट्रांसफर मनी और इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस, बिजनेस का बुक में होता है आपका कैश. कैश इज कमिंग इन एंड business is thinking that it is a liability to me. Therefore, liability को क्रेडिट करते हैं क्योंकि वो liability है, वो उधार है. और किससे? ना मिस्टर एक्स से. बट he will not take the name of Mr. X because Mr. X is the owner. ओनर का नाम पर रहता है क्या? ना कैपिटल. So cash account debit 1 lakh to capital. Capital is the liability. Here comes how the entity concept actually works. Similarly,
If a person is borrowing money from another person, Mr. Z, not from the Mr. X, X is the owner, तब क्या होगा ना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, कैश तो मेरा पास आता है इसलिए मैं उसको डेबिट कर देते हैं, और मिस्टर जेड क्रेडिट द गिवर, जो पैसा आपको दिया है वो उसका नाम पर लिखेंगे मिस्टर जेड। बट ओनर से पैसा लेने से वो भी लाइबिलिटी है, बट ये लाइबिलिटी का नाम कैपिटल, क्योंकि बिजनेस ओनर को रेस्पेक्ट देता है जिस तरह हम लोग पापा जी को रेस्पेक्ट देते हैं। सो फ्रेंड्स, two persons are needed for starting the business. Similarly, जब कोई माल सेल होता है, कोई गुड्स सेल होता है, उसमें भी two persons are necessary. One is called seller, another one is called buyer. Same person, a seller and buyer cannot be a same person. Therefore, इनकम जनरेट करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए मिनिमम 2 persons आर नेसेसरी। इसको बोलते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। फिर आप देखेंगे कि कौन कौन सा एंटिटी होता है। एंटिटी में आपका कोई कंपनी एंटिटी होता है, ग्रोसरी शॉप और ओनर वो भी अलग हो सकता है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में। पार्टनरशिप एक एंटिटी हो सकता है, दूसरा कोई भी पार्टी एक एंटिटी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो भी एंटिटी हो सकता है। एंटिटी मीन्स इट हैज गॉट a separate status, right? Similarly, जब एक वर्चुअल मैन, ए प्रोप्राइटर क्रिएटेड ए वर्चुअल मैन, ऑब्जेक्टिव वही है क्या ना, द ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल, that my business live long, my business will go forever, so that I will have a income from the business. क्योंकि कोई भी आदमी अगर आपका पापा जी को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करने का टाइम में पिताजी बोलते हैं live long, may you live happily for a long life, may you live long. These are the sentences generally uttered by your parents, by your well wishers, and that proprietor का पास में मैं बोल सकते हैं कि शेयर होल्डर, दे आर द ओनर। द ओनर हमेशा सोचते हैं कि लिव लॉन्ग माई बिजनेस, अगर मैं फिर भी मर जाएंगे ये बिजनेस को चलाने के लिए दूसरा कोई आदमी भी मिल जाएगा। सो द ओनर ऑलवेज थिंक ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस अगर ब्रेक हो जाएगा तो इनकम ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट। सो फ्रेंड्स, फिर जब में सोचते हैं कि बिजनेस विल लिव लॉन्ग, जब तक चांद सूर्य रहेगा बिजनेस तुम्हारा नाम रहेगा। देयर वाज ए atomic attack on Japan. At that time, all the companies are destroyed by shareholders have died. Everything finished. But the company, the corporates, they never die. Even if all the shareholder, अगर all shareholder अगर मर जाते हैं फिर भी कंपनी जिंदा रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं
गोइंग कंसर्न concept, concern means entity, going it will continue forever. So a new concept, the entity concept is giving rise to going concern concept. Going concern concept of accounting. The business will continue forever. तब क्या कोई डेथ नहीं होगा? Yes, there will be death, but ऐसे डेथ नहीं है unless the business is dissolved by the owner, unless the कोई अदर थिंग हो सकता है, कोर्ट ऑर्डर में भी बिजनेस डिजॉल्व हो सकता है, वो दूसरा बात है. Unless the business is dissolved, unless the business is killed, the business will continue. अगर डिजॉल्व हो जाएगा, अगर कोई किल करेगा, तब बिजनेस विल स्टॉप, अदरवाइज द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एवर. उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. राइट. फिर क्या ना, हम तो बिजनेस करते हैं, बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट, बट हो सकता है कि लॉस भी हो सकता है, वो तो दूसरा सेकेंडरी थिंग इज योर लॉस. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट. सो जब में प्रॉफिट करेंगे, क्या बिजनेस 50 साल चलेगा, उसका बाद हमको प्रॉफिट मिलेगा? कितना प्रॉफिट में निकालेंगे? नहीं, हमको प्रॉफिट कितना होता है वो हर साल चाहिए. अगर मैं चाहते हैं तो प्रॉफिट को मंथली भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट को 6 मंथली क्वार्टरली भी निकाल सकते हैं. इसलिए हम बिजनेस का लाइफ अनलिमिटेड, फिर भी बिजनेस का लाइफ को, जब से बिजनेस शुरू हुआ उसी लाइफ को मैं बांट देते हैं कोई टाइम हिसाब से, पीरियड हिसाब से उसको बांट देते हैं. कैसे ना, इसको बोलते हैं, मान लीजिए कि लाइफ स्टार्ट हियर, इधर स्टार्ट, और हमको क्या बिजनेस चलता है, पैसा तो मैं दे दिए, पैसा का बाद आदमी भी अपॉइंटमेंट हो गया, एम्प्लॉय भी आ गए, रेंट पेमेंट करते हैं, सैलरी पेमेंट करते हैं, सेल्स होता है, परचेस भी होता है, प्रोडक्शन होता है. फिर उससे रिजल्ट क्या निकालता है? क्योंकि मैं पैसा इन्वेस्ट किए, और every owner, every shareholder, they want about what their money is earning. पैसा तो लगा दिए, तो पैसा से रिटर्न क्या है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. वो रिटर्न को माप करने के लिए, रिटर्न को मेजर करने के लिए हमको चाहिए पीरियड. कितना पीरियड के लिए मैं निकालेंगे मेरा प्रॉफिट या लॉस, जो भी होगा, ऑपरेटिंग रिजल्ट क्या होता है उसको निकालते हैं. मे बी 12 मंथ्स और 12 मंथ्स, उसको मंथली भी हो सकता है. सो every 12 month I divide the period. I can also divide every month also. इसको बोलते हैं पीरियड. The period for which the operating result is determined, the period for which the sales, purchase, your सेल्स, परचेस, जो रेंट, सैलरी कितना होता है, मेरा इनकम कितना और एक्सपेंडिचर कितना, मेरा फिनेंशियल पोजीशन कितना, ये सब निकालने के लिए मैं बिजनेस का लाइफ को भाग भाग कर देते हैं. ये एक्चुअली हम डिवाइड नहीं करते हैं,
वो सोच लेते हैं कि इधर लाइफ खत्म नहीं होता है, इधर भी खत्म नहीं होता है, बिजनेस चलेगा, गोइंग कंसर्न। मेरा प्रॉफिट या लॉस ऑपरेटिंग रिजल्ट के लिए मैं सोच लेते हैं कि इधर लाइफ एक वर्चुअली स्टॉप। आई वांट टू डू द फाइंड आउट हाउ मच इज द प्रॉफिट और लॉस फॉर दिस 12 months। इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट और पीरियड कॉन्सेप्ट। पीरियड कॉन्सेप्ट। सो बिजनेस is based on certain period, that is total life कितना ये पता नहीं है, but from the start of the business we divide the life into 12 months, quarter, month। जिस पीरियड के लिए हमको रिजल्ट चाहिए उसी पीरियड के लिए आई एम डिवाइडिंग द लाइफ। सो इसको बोलते हैं पीरियड कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। नाउ फ्रेंड्स, जब कोई ट्रांजैक्शन होता है, अभी जो सब ट्रांजैक्शन होता है, सोच लीजिए कि 60, 70, 80 ईयर्स का पहले बैक वी हैड गॉट लॉट ऑफ अदर ट्रांजैक्शन। उसको बार्टर सिस्टम बोलते थे। बार्टर सिस्टम में कोई बाजार जाता था, he is taking some rice and bringing some vegetables। सो राइस किसको दे देते हैं और वेजिटेबल लेते हैं। मान लीजिए कि 10 kg राइस आई एम टेकिंग टू द मार्केट, और जो वेजिटेबल सेलर है उसको बोलते हैं कि भाई 10 kg में राइस देते हैं, आप इतना वेजिटेबल दे दीजिए। ही एग्रीड and he gives some vegetables to me। so इसमें एक्सचेंज सिस्टम में मनी नहीं है, दिस इज ए बार्टर सिस्टम। जब बार्टर सिस्टम होता है तब कोई ट्रांजैक्शन को मेजर करने के लिए मेरा पास कोई यार्डस्टिक नहीं था। ये राइस का वैल्यू कितना है, वेजिटेबल का वैल्यू कितना है, उसको मैं कोई रुपी में कन्वर्ट कर नहीं सकते थे। दैट वाज एक्चुअली ए प्रॉब्लम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड फेसिंग दैट प्रॉब्लम द सोसाइटी डेवलप द करेंसी। एंड करेंसी मीन्स इंडिया में जिस तरफ रुपी होता है, कहाँ डॉलर, कहाँ पाउंड होता है, दीज आर द करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्री। सो इसलिए हर ट्रांजैक्शन को बिजनेस सोचते हैं कि मैं एक मेजर कर लेंगे करेंसी में। करेंसी में होने से पता हो जाएगा कि मैं जो चीज लेते हैं उसका दाम कितना, जो देते हैं उसका दाम कितना, उससे मेरे को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, क्या होता है, मेरे को पूरा पता हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। Money measurement concept। So everything is measured in the terms of money, in the terms of currency, so that बार्टर सिस्टम में कोई जर्नल रिकॉर्ड हो नहीं सकता है। सो ए मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट करने का बाद हमको पता होता है कि मैं जो चीज परचेस किए, मैं जो पैसा इन्वेस्ट किए, उसका वैल्यू कितना है। सो दैट वैल्यू इज योर, द एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू इज योर मनी मेजरमेंट। में मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ माई करेंसी, इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ रूपी। में मेजर करते हैं कि कितना पैसा में देते हैं, हाउ मच मनी आई एम गिविंग, एंड व्हेयर इट इज बीइंग डिपॉजिटेड, व्हेयर इट इज बीइंग इन्वेस्टेड, एंड दिस इज कॉल्ड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, this money measurement
the entity concept, the going concern concept, the time concept, that is your period concept, and money measurement concept. These four concepts are the most strongest pillar of accounting. और भी concept है, realization concept, dual concept, all other concepts are also there, but these four are the basic pillar on which the total accounting stands. Now जब जरूरी हो जाता है बिजनेस तो हम स्टार्ट कर लिए, और बिजनेस में भी ऑफ डिफरेंट वेराइटी, में भी ए कंपनी, में भी ए पार्टनरशिप फर्म, में भी ए प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, all these things are there. Now when I am getting profit or loss or any other thing, I want to know what is the end result. पीरियड से तो मैं डिवाइड कर दें कि ये पीरियड के लिए कितना ट्रांजैक्शन होता है, क्या ट्रांजैक्शन होता है, उसको मैं डिटरमिन करेंगे. बट हाउ टू एक्चुअली डिटरमाइन, हाउ टू अराइव एट द एंड रिजल्ट, द एंड रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हिच पीरियड कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल. हाउ टू रीच एट द प्रॉफिट, how to reach at my loss, how to find out my operating result. Now if you take into account the system of accounting, previously the system of accounting was different. There was no double entry concept of accounting, but in the early 19th century the concept of modern accounting has been substituted with the old one. In the old one generally कोई पैसा लेकर के दुकान जाते हैं या मार्केट जाते हैं, वो इतना पैसा लिया और क्या क्या परचेस किया, कितना क्लोजिंग बैलेंस, बस वही अकाउंट्स था. नाउ विद द मॉडर्न कॉन्सेप्ट वी हैव गॉट क्रेडिट परचेस, वी हैव गॉट क्रेडिट सेल, उधार में सेल करते हैं, उधार में परचेस करते हैं. ये सब कॉन्सेप्ट को रिकॉर्ड करने के लिए वी हैव डेवलप्ड the modern method of accounting, that is your dual concept, dual nature. Everything has got a dual nature. The dual nature give rise to dual concept of accounting. This dual concept is means एवरी डेबिट, कोई डेबिट होता है तो कहां भी क्रेडिट हो जाएगा, और ये डेबिट क्रेडिट, अगर डेबिट 10 रुपया होगा तो क्रेडिट भी, टोटल क्रेडिट भी 10 होना चाहिए. दिस गिव राइज टू एरिथमेटिकल एक्यूरेसी. अगर इस तरफ टाली हो जाएगा, टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट अगर टाली होता है, तब एरिथमेटिकली मैं करेक्ट हूं, ये कुछ ना कुछ डिटरमिन होता है. सो दिस एवरी डेबिट हैज गॉट ए कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट. बिजनेस का पास प्रोप्राइटर इन्वेस्टेड ₹1 लाख, तो बिजनेस का पास, बिजनेस का पॉकेट में पैसा आ रहा है 1 लाख, सो डेबिट 1 लाख पैसा आता है. और बिजनेस सोचता है कि ये मेरा लायबिलिटी है, और मैं किससे पैसा लिए हैं ना, मैं ओनर से पैसा लिए, ओनर का नाम नहीं लेंगे. कैपिटल, प्यार से, मोहब्बत से, जिस तरह एक बच्चा पापा बोलते हैं, बिजनेस बोलता है यू आर माई आइडियल, यू आर माई कैपिटल. सो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं कैपिटल. ये कैश डेबिट होता है और
कैश डेबिट होता है और कैपिटल क्रेडिट होता है विद द इक्वल अमाउंट। इसको बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। मान लीजिए कि बिजनेस इज बोरोइंग मनी फ्रॉम मिस्टर के। बिजनेस इज बोरोइंग मनी। बिजनेस जब कोई पैसा बिजनेस बोरो करते हैं तो बिजनेस का पास में पैसा आता है, सो डेबिट कैश। मान लीजिए 10,000 बोरोइंग मनी फ्रॉम मिस्टर के। और जब लिखेंगे ये भी एक लायबिलिटी है बिजनेस का, वो भी लायबिलिटी था, ये भी लायबिलिटी था। किससे में पैसा लिए हैं? बिजनेस सोचता है कि ये मिस्टर के। इसको रिकॉर्ड करना जरूरी होता है क्योंकि बाद में जब पेमेंट करेंगे तब ये के नाम पर हम इसको चेक देंगे, बिजनेस सोचता है। सो टू मिस्टर के में के से पैसा लिए हैं, इसलिए आपका के को क्रेडिट हो गया। ये भी लायबिलिटी, वो भी लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। सो दिस कॉन्सेप्ट गिव राइज टू डुअल एस्पेक्ट। दिस इज मोर साइंटिफिक एंड दिस इज मोर एक्यूरेट। नाउ ऑल द बिजनेसमैन they follow the generally the dual aspect of accounting. सिंगल एंट्री बेस्ड मेथड ऑफ अकाउंटिंग भी होता है, बट प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आपको फिर डबल एंट्री में उसको कन्वर्ट करना है। इसलिए नाउ द जनरली वी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस generally dual aspect of accounting is followed, and other aspects are recording purpose, realization concept. Similarly other concepts are also there. Friends, ये जो accounting concept है उसका ऊपर पूरा डिटेल नोट्स ये वीडियो का लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। डिटेल नोट्स क्या होता है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा अकाउंटिंग का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसका नोट मिल जाएगा। बट बेसिकली दिस 5 कॉन्सेप्ट, मोस्टली द 4 कॉन्सेप्ट आर द कॉर्नरस्टोन, आर द स्ट्रेंथ पिलर ऑफ द अकाउंटिंग, जिसका ऊपर अकाउंटिंग का तरफ एक बिल्डिंग खड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द वीडियो you can subscribe and comment on this. Meet you in the next class. In the next class we will go for the accounting equation and you will enjoy that accounting equation also. Thank you.